we are going to study about Raoult's law. Okay, so let's understand what is Raoult's law. Suppose we have a container and it have a compound A. Okay, now when we will provide heat to this container, there will be vapor, and if closed container, then it exert vapor pressure. We denote the vapor pressure by P naught A. This is a pure liquid A. There is no other component. Another container, it have a compound B, and again when we will provide heat to this container and container is closed, then we get vapor pressure of B. This is a pure vapor pressure of B. Okay, now if we mix these two compounds in one container and when we will provide heat, we see the vapor pressure of A and B is not same as earlier. Okay, when both components are in one container, then the pressure we will get is less than this pressure. So here this pressure is termed as a partial vapor pressure. This is a partial vapor pressure of A and this is partial pressure of B. So what Raoult's law say? Raoult's law say that partial vapor pressure of A is directly proportional to mole fraction of A. Okay, and similarly partial pressure of B is directly proportional to mole fraction of B. This is the basic of Raoult's law. Okay, so we can write definition of Raoult's law that for a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. Okay, that is we can write that partial vapor pressure of A is directly proportional to mole fraction of A, and we know when the proportionality sign is removed, then a constant arises. Okay, suppose mole fraction of B is 0 and mole fraction of A is, okay, when mole fraction of B is 0, then obviously mole fraction of A is equal to 1. So now we will put this value in this equation. We will get partial pressure of A is equal to K mole fraction of A. Now when we will put the value of mole fraction of A is equal to 1, then we know it means that only one component is present in the container. This is like this. So we can write that this partial pressure is now it's completely vapor pressure of A, and which is equal to K. Okay, so here we can write that K is equal to P naught A. So here we can write that on the place of K we can write P naught A as I have written here. Similar case for B component. Now we have to find the total pressure. Total pressure is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B. And we know we can finally conclude the formula that partial pressure of A is this and partial pressure of B is this. We will put the value and we will get this formula. On the basis of Raoult's law, there are two types of solution. First is ideal solution. Second one is non-ideal solution. Non-ideal solution is further classified as negative deviation, that the solution which show negative deviation, and other is positive deviation, the solution which show positive deviation. Now we are going to understand about ideal solution. Ideal solution वो होते हैं जो Raoult's law को follow करते हैं, that is they follow Raoult's law. Okay, that is we can write P total is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B. ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो दो कंटेनर हैं, एक में A रखा है एक में B रखा है. जैसे कि मैंने बताया कंटेनर है, एक इसमें A कंपाउंड है और एक में B कंपाउंड है. ठीक है, और इन दोनों को जब ऐड कर दिया गया तो एक कंटेनर में जब दोनों को रखा गया, दैट इज़ A एंड B बोथ आर प्रेजेंट. तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिस तरह A और A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो B और B के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इक्वल है, और जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो A और B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिमिलर टू, और वी कैन से इक्वल टू A और B फोर्स के अट्रैक्शन है. दैट इज़ वी कैन राइट force of attraction between
AA molecule is equal to AB molecule is equal to BB molecule. ठीक है, जो AA का इंटरेक्शन है वो AB के इक्वल है और वो B के, मतलब तीनों एक जैसे ही इंटरेक्शन है. ठीक है, और इसमें जो डेल्टा H मिक्सिंग है, जो इंथैल्पी चेंज हुआ है मिक्सिंग करने पे, वो है 0. ओके, और चेंज इन जो वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज 0. and we know change in entropy of mixing is greater than 0. Okay, and delta G mixing is less than 0. ये चारों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, आइडियल सॉल्यूशन. like CH3OH plus C2H5. Solution of methanol and ethanol. It shows ideal solution. Second one is N-hexane, that is normal hexane, plus N-heptane. Third one is, we can say, like C2H5Cl, that is chloroethane plus bromoethane. सॉल्यूशन को ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. ओके, मैंने वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया है और एक्स एक्सिस पे ये जो है ये मोल फ्रैक्शन लिया है. ठीक है, ओके, आई एम सेइंग दैट लेट एट दिस पॉइंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ 1. ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो 1 है तो पार्शियल प्रेशर एक मैक्सिमम पे है, सॉरी नॉट पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर जो ए का प्योर ए है उसका वेपर प्रेशर ये मैक्सिमम पे है. ठीक है, जैसे जैसे मैंने वेपर इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 की तरफ जा रहा है तो जो वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा. ठीक है, ओके, अब सपोज़ करते हैं कि जब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वॉज 0, देन इस टाइम जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो 1 है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आते आते जो बी का मोल फ्रैक्शन है वो 0 हो गया. ठीक है, तो अगर मैं एक बी के साइड से अगर ग्राफ बनाऊंगी तो जब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है तो मीन्स इसका जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है. ओके, यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम है. तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 होता जाएगा वैसे वैसे पार्शियल जो सॉरी वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा. ओके, दिस लाइन डिनोट्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, हियर दिस लाइन डिनोट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ बी and this line denotes partial pressure of A. And whereas when we will join this line, it get P total is equal to PA plus PB. So finally, this is the graph of ideal solution. Non-ideal solution. The solution which do not follow Raoult's law. So we can write they do not follow Raoult's law. That is, P total is not equal to PA plus PB. Here, change in enthalpy of mixing is not equal to 0. Change in volume in mixing is not equal to 0. Okay, here AB interaction is not equal to AA interaction and BB interaction. ठीक है, जो AA इंटरेक्शन में है वो AB इंटरेक्शन के इक्वल नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि जो BB कंपाउंड्स के बीच में इंटरेक्शन है वो AB कंपाउंड्स में इंटरेक्शन नहीं होगा. ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. ऑन दिस बेसिस it is classified as negative deviation and positive deviation solution. So now we will understand what is negative deviation. In negative deviation, AB interaction is
greater than AA and BB interaction. Okay, let's try to understand with diagram. Suppose we have container A. It has molecules which is it has molecules of the compound A. ओके इसका वॉल्यूम VA था. ठीक है. एक दूसरा कंटेनर है जिसमें कंपाउंड B है. ठीक है, जिसमें कंपाउंड B है. इसका जो वॉल्यूम है वो VB है. ठीक है. अब मैंने जब इन दोनों कंपाउंड्स को एक कंटेनर में ही रख दिया, एक्चुअली द कंटेनर ऑफ बोथ दीज टू कंटेनर जो हैं वो सेम साइज़ के ही हैं. ठीक है, जब इसमें कंपाउंड A है, इसमें कंपाउंड B है, जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो ये आना तो चाहिए था जब इन दोनों को मिक्स करते और जब इंटरेक्शन इक्वल रहता तो यहाँ पे आना चाहिए था VA प्लस VB. लेकिन क्योंकि AB का इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो डिक्रीज़ हो जाता है. दैट इज़ ये फाइनल आता है. ठीक है, तो हम यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं. V सॉल्यूशन मीन्स जो फाइनल आ रहा है और जो आना चाहिए था. ठीक है, ये VA प्लस VB से V सॉल्यूशन कम है, तो जब ओवरऑल देखेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी. ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम इज़ लेस देन 0. ठीक, ओके. एक बात ये हुई. दूसरी बात ये हुई कि जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे और चेंज इन इंथैल्पी भी निगेटिव है. ये निगेटिव क्यों है ये समझते हैं. सिंस जो AB इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, इसका मतलब ये काफ़ी स्टेबल कंपाउंड बना है. इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है. इसका मतलब कि जो स्टेबल कंपाउंड बना है इट मीन्स इसमें हीट रिलीज हुई है. दैट इज़ इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो हियर इट इज़ प्रूफ. यहाँ पे हीट रिलीज हुई है फाइनल सॉल्यूशन में क्योंकि स्टेबल कंपाउंड बना है. ओके, जब ये सेपरेट कंपाउंड के फॉर्म में थे तो जो इनका वेपर प्रेशर था इज़ मोर, बट आफ्टर AB के स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बाद इनका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो गया. तो हम लोग लिख सकते हैं दैट P टोटल इज़ लेस देन PA प्लस PB. ओके, एज इन राउल्स लॉ here initial vapor pressures are more, but after AB interaction vapor pressure decreases. So we can write P total is less than PA plus PB. Okay, now we are going to write few examples which shows negative deviation. Example, phenol. The solution of phenol and aniline, it shows negative deviation. Other is chloroform plus acetone. Okay, now we will understand non-ideal solution negative deviation graphically. Okay, this is y-axis. This is y-axis. Here we will write vapor pressure of A. Okay, and this is x-axis. Here we are going to write vapor pressure, mole fraction of A. Okay, again here suppose here mole fraction is 1. Okay, as we have written in ideal solution, as mole fraction decreases its vapor pressure also decreases. Okay, when here mole fraction of B is 0 and here mole fraction of B is what I have written. Here mole fraction of A is 1, here mole fraction of A is 0. Okay, now here when mole fraction of B is 1 and here 0, so here the partial pressure of B is P naught B. Okay, and since from mole fraction is 1 here and it will decreases, since mole fraction decreases vapor pressure also decreases. Okay, I have to मुझे ये डॉट लाइन से बनाना चाहिए था. Okay, but when the solution is negative deviation, when they show negative deviation, that is the curve we will get here is like this. Okay, and here it is like this. Okay, so as earlier we have seen that P total is P total is PA plus PB, but since it is negative deviation we get P total is less than PA plus PB.
Okay, this is the graph of non-ideal negative deviation solution. Okay, now we will understand what is positive deviation. ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो ए बी कंपाउंड्स के बीच में इंटरेक्शन है दैट इज लेस देन ए एंड बी इंटरेक्शन. ठीक है, जैसे एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है. ठीक है, एंड एक कंटेनर में ए बी सब मिक्स करके रखे हुए हैं. ठीक है, इसमें जिसमें कंपाउंड ए है उसका वेपर प्रेशर वी ए है. ठीक है, जिसमें कंपाउंड बी है उसका वेपर प्रेशर जो है वो वी बी है. ठीक है, जब इन दोनों को मिक्स किया गया एक कंटेनर में तो देखा गया अगर मिक्स करने पे अगर आइडियल सॉल्यूशन जैसा रहता तो ये यहाँ पे आता. ठीक है, वी ए प्लस वी बी यहाँ पर आना चाहिए था. बट देखा गया कि जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे आ रहा है. ठीक, ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस जो वॉल्यूम इन दोनों के अगर ये आइडियल होता तो मिक्स करने पे आता. ठीक है, तो वी सॉल्यूशन जो है वो वी ए प्लस वी बी से काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, अच्छा, ये पहली बात हुई. दूसरी, अब हम इंथैल्पी की बात करेंगे. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि ए बी इंटरेक्शन कम होता है तो स्टेबिलिटी बिकम लेस. ठीक है, यहाँ पे अब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. एंड वी नो व्हेन स्टेबिलिटी डिक्रीजेज दैट इज़ वहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, दैट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है. ठीक है, पी टोटल इज़ ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी. ठीक है, यहाँ पे जो पी टोटल है फाइनली वो पी ए प्लस पी बी वेपर प्रेशर्स के ज़्यादा है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं पॉजिटिव डेविएशन का, जैसे CCl4 प्लस मेथेनॉल, CS2 प्लस एसीटोन, ओके, इथेनॉल प्लस एसीटोन, these are solutions which show positive deviation. Okay, let's graphically understand positive deviation, non-ideal solution. ठीक है, अगेन ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर लिया है एक कंपाउंड का, यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन 1 है. ठीक है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का जो है वो 0 हो जा रहा है. तो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये कुछ ऐसे डिक्रीज होता. ठीक है, अच्छा, अब मैंने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे B1 लिया है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो है वो 0 है. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहता कि जो B का वेपर प्रेशर है वो जैसे जैसे उसका मोल फ्रैक्शन 0 होता जाता है वैसे ही उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे ये सब सॉल्यूशंस हैं तो उसमें जो ग्राफ है वो कुछ A के लिए ऐसा आ रहा था. ठीक है, और B के लिए ऐसा आ रहा था. ठीक, और जब P टोटल आइडियल सॉल्यूशन में जो कुछ ऐसा शो हो रहा था, P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी था. ठीक है, इन आइडियल सॉल्यूशन. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ ऐसा शो होता है, दैट इज़ P टोटल इज़ ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी. ठीक है, ये नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हुआ. थैंक यू.